Hello everyone. After a long period of time, I am again starting my YouTube channel. Without taking much of your time, let's start with a different topic of bio and chemistry. Today, I will try to figure out the relationship between living organism and a very interesting compound that is water. What are the qualities present in this compound which help living being to alive? So in this topic we will try to identify or to figure out the relationship between the water and the compound. So welcome to Ask Point Center. So in this slide, there is a question abundant substance in living system. Living system में वो कौन सा substance है जो सबसे ज़्यादा present है? And you and we already know that that system or that compound is what? तो water, that compound is water. The water is that compound which is present abundant, which is present in a large quantity. So as we know water is an most abundant substance in living system, and 70% of water, 70% of weight of most organisms are made up of water. We also know that first living organism arose in an aqueous environment. So what the life is originated in the water. We know evolution taking its shape by the properties of aqueous medium. So here is an interesting point. So what am I saying? That we know evolution take place, yeah, evolution taking its shape in the in by the properties of aqueous medium. So aqueous medium जो aqueous solution है वो हमारे जो लिविंग सिस्टम है उसको शेप देने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सो लाइफ बिगेन इन एक्वस मीडियम. सो इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर with related to living world. Why? Because by this we can understand all the aspect of cell structure. सेल स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बना, सेल स्ट्रक्चर में जो लाइफ आई, जो जो डिफ्यूज़न हुआ, जो ऑस्मोसिस हुआ, जो कम्युनिकेशन हुआ, जो रिलेशनशिप हुआ, वो वाटर ने या एक्वस मीडियम ने उस पर अपना एक्वस मीडियम का कैसे अपना रोल रहा. So we also know that this tendency is so we know that so because by this we can understand all the aspect of cell structure and function are adapted by water. So we know two water molecule having attractive force and having the slightly tendency of water to ionization. So there are some point which I have already written, that water interaction in एक्वस सोल्यूशन, वीक इंटरेक्शन. तो वाटर का एक वीक इंटरेक्शन होता है एक्वस सोल्यूशन में जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक सेल के बीच में, सेल के अंदर कुछ एक्टिविटीज करने में. आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वीक एसिड एंड वीक बेस, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है हम उसको भी फिगर आउट करेंगे और ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि वाटर और लिविंग वर्ड के बीच में क्या रिलेशन है. बफरिंग एजेंट, तो वी ऑलरेडी नो दैट हमारी बॉडी का पीएच एक लेवल में होता है, उस पीएच में चेंजेस आ जाए या उस पीएच में बफर का क्या रोल, वाटर एज अ बफर कैसे अपना रोल प्ले करता है, वाटर एज एन रिएक्टेंट, वाटर कैसे रिएक्टेंट की तरह रोल करता है, द फिटनेस ऑफ एक्वस एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग organism. So we will try to figure out to clear these all topics in this video. So aspect of cell
स्ट्रक्चर फिजिकल। सो सबसे पहले हमें क्या जानना है कि वाटर की फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनका सेल के स्ट्रक्चर में कैसा रोल होगा। तो वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसका रोल, एक तो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे अप्लाई करेगा, पीएच उसका कैसे मेंटेन करेगा, बफर का क्या रोल है, टाइट्रेशन कर्व क्या है, तो हम इन सब के बारे में समझेंगे। सो सेल के वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हमें इन प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो इन प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज हैं और ये हमारा सेल है, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसके लिए वाटर ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें इसकी जो टॉप पॉइंट्स है वो है, एक तो हायर हायर मेल्टिंग पॉइंट है इनका, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हायर of water, boiling point is also considered, and heat of vaporization, heat of vaporization. So unusual, these are unusual property of water with इसके इन प्रॉपर्टीज के कारण अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर गिविंग, ये सब गिविंग बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो टू कंसीडर हाउ aqueous solution of weak acid and bases and their salt act as a buffer is against the pH change in biological system. These unusual property are the result of attraction between the adjacent water molecules that give liquid water great इंटरनल कोहेजन। तो दो लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ऐसा कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स है जिसके कारण वाटर को एक लिक्विड टेंडेंसी मिलती है। सो इफ वी कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को कंसीडर करें, which tells the cause of this intermolecular attraction. As we know, each hydrogen atom of water molecule share an electron pair with the central oxygen. ये central oxygen के साथ, this is the oxygen and this is hydrogen, this is hydrogen. तो this is a single molecule of water. ये water का एक single molecule है। अब ये वाला molecule और इस molecule के बीच में जो relationship है वो किसके कारण हो रहा है, यहाँ पर एक ये बॉन्ड बन रहा है। अभी क्या होता है कि जो इसका ऑक्सीजन, अब ये बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, जो वाटर वन मॉलिक्यूल है, वाटर टू मॉलिक्यूल है, वाटर वन मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है, वाटर टू का जो ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक बॉन्डिंग है। तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली हाइड्रोजन से ज्यादा हैवी है, तो एक स्लाइटली वो किसकी तरफ, दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल, जो ये वाला जिसका ऑक्सीजन एंगेज है उसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो ये टेंडेंसी है, स्लाइटली चार्जेबल जो टेंडेंसी है, इस ये ही क्या करता है, दिस टेंडेंसी इज रिस्पॉन्सिबल टू जो सेल के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जो ये बॉन्ड जो बनता है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है, ऑक्सीजन एटम के आउटर इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके शेप से डिटेक्ट होता है। मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसका अगर हम ऑर्बिट देखें तो क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है ना, sp3 होगा। इसी पर ही क्या डिपेंड करता है, वाटर मॉलिक्यूल की शेप भी इसी पर ही डिपेंड करती है। तो जो कि कार्बन बॉन्डिंग, जो कि ये भी कार्बन बॉन्डिंग के जैसे ही होती है। ये ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन एटम के साथ रफ, तो ये दो तरीके की बॉन्डिंग बनाते हैं। एक तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये दो तरह की बॉन्डिंग बनाते हैं। एक होता है रफ
टेट्राहेड्रन डिस्क्राइब करेंगे। रफ टेट्राहेड्रन, कैसे ये टेट्राहेड्रन है इसको डिस्क्राइब करते हैं, जो कि जिसमें 4 कॉर्नर होते हैं। तो अगर वाटर का मॉलिक्यूल देखें हम, तो इसमें अगर वाटर का मॉलिक्यूल देखें तो सपोज दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ओके। तो इस मॉलिक्यूल में एक तो हाइड्रोजन ये है, राइट, एक हाइड्रोजन ये है। ये दोनों हाइड्रोजन शेयरिंग कर रहे हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये दोनों हाइड्रोजन शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो दो कॉर्नर्स हैं उसमें रफ टेट्राहेड्रन ऑर्बिटल है, और जो जो है ये अनशेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में 104.5 डिग्री का क्या बनता है? एंगल बनता है, ठीक है, जो कि 109.5 डिग्री से क्या है, ये कम होता है। जो कि ये परफेक्ट, ये क्या है, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल परफेक्ट टेट्राहेड्रन को बनाता है। अगर परफेक्ट हमको टेट्राहेड्रन चाहिए तो उसके लिए 109 होना चाहिए 0.5। लेकिन अगर हाइड्रोजन में, वाटर मॉलिक्यूल में, ये जो एंगल है ये इससे स्लाइटली छोटा है, 104.5 डिग्री का है। ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के कंपैरिजन में भी ऑलरेडी नो ऑक्सीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, इसलिए उनमें पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। तो these are some properties which are responsible for the activities in water in living organism also। तो ये वाटर के अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसी के कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो वाटर मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन, दो वाटर मॉलिक्यूल में एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, ये किसके कारण होता है? हाइड्रोजन, let us say between the oxygen atom of one water molecule and hydrogen of another, and this is called the hydrogen bond। हम इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें हमने ये समझा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है और इसका रोल किस तरीके से है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, और इनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका क्या रोल है आइस में, आइस बनाने में इसका क्या रोल है, और इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे कि वाटर मेक्स वाटर लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। what make water liquid at room temperature, how water interaction replaced by the water solute interaction, which type of molecule dissolve in water, or who make cluster in water। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि इसी से ही रिलेटेड है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।